No need to take out your copies or mats. Just listen to the topic and enjoy. ठीक है? कुछ भी लिखने का दरकार नहीं है. Everything is given in your mat. At the end of the class, you are going to discuss it. All right? खाली सुनो, समझो और enjoy the lecture. And don't disturb while I am teaching. Close your books. Just sit calmly. Just enjoy the class. ठीक है? So let us begin with the first class of demand. Now what do you mean by demand? What is demand? अच्छा, demand chapter पहले obviously इसका पढ़ा हुआ होगा कि नहीं पढ़ा हुआ है? Economics पहले था ना? How many of you are from totally non-economics background? Raise your hands. कभी भी नहीं था economics? Very good. और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है? So कुछ डरने का बात नहीं है. Even if this is your first time, it will be crystal clear to you because we are going to discuss the very basic concepts. ठीक है? पूरा बच्चा लेवल से स्टार्ट करेंगे हम लोग. All right. So let us begin with what is demand. Demand का मतलब क्या होता है? सुनो. Demand refers to quantity of a particular commodity which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. इतना बड़ा definition था. Just after 2 minutes you are going to say me the same definition. अभी समझो क्या बोले. Demand क्या होता है? Quantity. Quantity क्या चीज का? कोई भी commodity का which a consumer is ready, willing and able to purchase. यानी तुम्हारे पास willingness, desire होना चाहिए खरीदने का, प्लस क्या होना चाहिए? Purchasing power. If you have only willingness but you don't have financial power to purchase, क्या डिमांड कर पाओगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं. कोई चीज को कब खरीद पाओगे? जब willingness भी है और पैसा भी है, मनी भी है. मनी refers to what? Purchasing power. If you have only desire, you don't have purchasing power, it will not constitute demand. All right. So demand में दो चीज होना essential है. Willingness भी होना चाहिए, that is desire होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? Purchasing power. If you have only desire, you don't have purchasing power, will it constitute demand? No. Will it constitute demand? No. So demand means, can I say desire plus purchasing power? Demand का मतलब क्या हो गया? Desire plus purchasing power. अगर खाली desire है, purchasing power नहीं है, तो demand होगा क्या? नहीं. तो इसलिए क्या बोले? Quantity of a commodity which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. यानी कोई भी commodity का specific price होना चाहिए, time होना चाहिए when you are demanding and particular quantity you are going to demand for that commodity, तभी इसको demand बोलेंगे. This means demand has got 3 elements: quantity, price, time and place. Quantity, price, time and place. अगर ये तीनों elements missing है, it will not be called as a definition of demand. ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं in detail? सुनो, exam में आता है what is demand? 4 options. खाली सुनना. पहले बोलेगा demand refers to quantity of a commodity. Complete. According to you, अगर definition पूरा नहीं पढ़ोगे तो तुमको तो correct ही लगेगा. Demand मतलब हो गया quantity of a commodity which a consumer wants to purchase. Second definition, quantity of a commodity which a consumer wants to purchase at a particular price and at a particular period of time. दोनों में से कौन सा correct definition है? जिसमें all the 3 elements should be present. यानी quantity, price, time and place. Any of the 3 are missing, it will not call as a definition of demand. या हो सकता है demand का दूसरा definition desire plus purchasing power. Only desire is there, willingness is there, but no purchasing power. Will it call as demand? Yes or no? No. So demand means desire for a commodity backed up by purchasing power. Desire for a commodity backed up by खाली desire है, purchasing power नहीं है, demand होगा क्या? Yes or no? Again, listen to the big definition of demand. क्या बोले थे? Demand refers to the quantity of a commodity which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of. अब समझ में आया वाला definition? Can you speak out this definition with me? Yes or no? बोलो. Demand refers to the quantity of a commodity which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. Demand is equal to dash plus dash. Desire plus purchasing power. What are the 3 elements of demand? Quantity, price, time and place. Any of the 3 elements are missing, it will not be called as a definition of demand. Clear hai? Now answer me, a beggar, can he demand for a bungalow or he can desire for a bungalow? Desire. Why can't he demand for a bungalow? उसका इच्छा तो हो सकता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है बंगलो खरीदने का. So he may have desire but he cannot have purchasing power. So we can say a beggar can only desire, he can never demand. क्योंकि demand वही कर सकता है जिसके पास दो चीज हो. What are those 2 things? Desire and purchasing power.
डिजायर भी और परचेसिंग पावर. सिर्फ डिजायर और परचेसिंग पावर नहीं है तो डिमांड होगा क्या? यस और नो? लास्ट टाइम अगेन, व्हाट इज डिमांड? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of. Clear है यहाँ तक? Now there are three features of demand. ठीक है? What are those three features of demand? Number one, demand depends upon utility of a commodity. Demand किसके ऊपर depend करता है? Now anybody answer me, what do you mean by the term utility? Utility का मतलब क्या होता है? Raise your hands and answer me. Raise your hands and answer me. देखो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है फिर भी यूटिलिटी नहीं पता. दैट इज द फर्स्ट चैप्टर दैट इज बीइंग टॉट इन योर सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. व्हाट इज यूटिलिटी? डरना नहीं है क्लास में. यू हैव टू जस्ट रिलैक्स, एंजॉय. गलत आ रहा है तो भी हाथ उठाओ, बोलो. कुछ तो मन में आ रहा होगा. बोलो व्हाट इज यूटिलिटी? वेरी गुड. द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज नोन एज यूटिलिटी. एकदम इजी है, कुछ नहीं. कोई भी एक कमोडिटी लाइक से एन एप्पल. एप्पल खाने से तुमको सेटिस्फैक्शन मिलता है? इज योर हंगर गेटिंग सेटिस्फाइड? यस और नो? आर यू डिराइविंग समथिंग बाय ईटिंग एप्पल? सो कैन आई से एप्पल क्रिएट्स यूटिलिटी फॉर यू? एप्पल इज क्रिएटिंग यूटिलिटी फॉर यू. सो यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ. तो डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूटिलिटी. मेरे को एक बात बताओ, जो चीज तुमको यूटिलिटी देगा तुम वही चीज खरीदोगे ना, कि जो चीज यूटिलिटी नहीं देगा वो खरीदोगे? Obviously, जिस चीज से तुमको यूटिलिटी मिल रही है, you are going to purchase greater of that commodity. So greater is the utility, greater will be the demand. है ना? जिस चीज का यूटिलिटी ज्यादा उसका डिमांड क्या होगा? ज्यादा. और जो चीज तुमको यूटिलिटी नहीं दे रहा उसको डिमांड करोगे क्या? नो. So demand is depending upon utility. Number two, demand always means effective demand. Demand always means effective demand. Now what is effective demand? This effective demand word का मतलब क्या हुआ? बोलो. Desire plus desire of a commodity backed up by purchasing power. And lastly, demand is a flow concept. Demand is a flow concept. Flow means, मेरे को बताओ, it should be constant or it is going to change. Flow word का मतलब क्या होता है? Change. Variable की constant? Change. It is a flow concept means it varies from place to place, person to person, time to time. Demand varies from place to place, person to person, time to time. For example, तुम लोग दोनों का डिमांड अलग होगा कि सेम होगा कोई भी चीज के लिए? सपोज she likes to wear jeans, she likes to wear sarees. तो दोनों का डिमांड सेम है कि अलग अलग है? So demand varies from person to person, from time to time. Summer season we are preferring thin summer clothes, winter season we are preferring woolen clothes. ठीक है? So demand is varying from time to time. Similarly, it varies from place to place. Place to place. Moving into Antarctica during summer season, still you are going to wear woolen clothes. समझ में आ रहा है? बट अगर समर सीजन में यहाँ पे हो तो क्या पहनोगे? वुलन पहनोगे क्या? स्पीक आउट, पार्टिसिपेट. क्या पहनोगे? कॉटन क्लोथ. सो डिमांड इज वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो इज इट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट और इज इट अ फ्लो कॉन्सेप्ट? व्हाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट? बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम. क्या फिक्स्ड है क्या कि चेंज होते रहता है? विथ पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू. So demand is a dash concept. क्या बोलोगे? Flow concept. So what are the three features of demand? Number one, demand depends upon utility. Number two, demand always means effective demand. That is desire plus purchasing power. Lastly, demand is a flow concept. Varies from place to place, person to person, time to time. Complete. So these was the basic theory. ठीक है? ये सब अभी हम लोग आज का जो फर्स्ट क्लास है हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पढ़ने वाले हैं. समझ में आ रहा है? कुछ भी जिसमें समझने का नहीं है, जस्ट यू नीड टू लिसन एंड लर्न इट. कुछ भी समझने का था इसमें बताओ? अब ये भूलोगे क्या एग्जाम तक कि याद हो गया? याद हो गया. और वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तो लिखने आता नहीं है. यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. क्या आता है? एमसीक्यू. ठीक है? तो खाली सुनना और दिमाग में बैठाने, कभी भी रटने के चक्कर में मत जाना. डोंट ट्राई टू मग अप एनी ऑफ द थिंग्स इन इकोनॉमिक्स, एनी सब्जेक्ट, नॉट इन इकोनॉमिक्स. खाली सुनो, समझो और ध्यान रखो. रटना नहीं है कुछ भी. ठीक है? समझोगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा. ऑल राइट. So what did we discuss till now? Two things: definition of demand and features of demand. Demand का definition बोलो. Demand is equal to dash plus dash. What are the three elements of demand? Number one, quantity. Number two, price. Number three, time and place. Speak out, speak out. ठीक है? फिर उसके बाद बोलो डिमांड का तीन तो फीचर. नंबर वन, डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी. नंबर टू, effective demand. What do you mean by effective demand? Desire plus purchasing power. And demand is a dash concept. What do you mean by flow concept? Varies from person to person, place to place, time to time. Clear है यहाँ तक?
Now we need to discuss the factors that affect demand. ठीक है, what are the factors that affect demand? That is known as demand function. That is known as what? Demand function. तो अभी हम लोग क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं? Demand function. Now there are certain factors that is going to affect demand, and the functional relationship between demand and all the factors that affect demand is known as, बोलो, is known as demand function. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग को सारा फैक्टर्स पढ़ना है. दैट इज गोइंग टू अफेक्ट, दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस डिमांड. अगर एग्जाम में नोटेशन दे दिया तो पूछेगा नोटेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज योर आंसर? डिमांड फंक्शन. ठीक है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द फैक्टर्स. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन फैक्टर, अदर फैक्टर्स विल बी अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट. इसका मतलब कि एक टाइम पे खाली एक ही फैक्टर डिमांड को चेंज कर सकता है, बाद बाकी फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट. क्या ये दोनों फैक्टर एक संग डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? नो. एट अ टाइम ओनली वन फैक्टर कैन अफेक्ट डिमांड, अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन. सबसे पहले पढ़ेंगे दिस एक्स का मतलब क्या हुआ? कमोडिटी एक्स. द नेम ऑफ द कमोडिटी इज व्हाट? वाई कर सकते हैं क्या इसको? जेड कर सकते हैं क्या? एप्पल ऑरेंज लिख सकते हैं क्या? जो लिखना लिखो, तुम्हारा मन. ठीक है, ये कोई यूनिवर्सल नोटेशन नहीं है कि तुमको एक्स लर्न ही करना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हो. एक्स खाली क्या सिग्निफाई कर रहा है? नेम ऑफ अ कमोडिटी. dx means demand for a commodity x. dx means what? Demand for a commodity, and these are various factors that are influencing demand for commodity x. ठीक है, what is the first factor? Price of x. Price of the commodity. P का मतलब क्या होता है? Price of the commodity x. Whenever you are discussing about price, other factors will remain. To indicate the constancy sign we put a bar. ठीक है, इसका मतलब बाद बाकी फैक्टर क्या है? कांस्टेंट. अच्छा, पी के ऊपर भी बार पुट कर दे क्या? तो कोई फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, एक फैक्टर को तो इफेक्ट करवाना ही है, तो अभी किसको इफेक्ट करवा रहे हो? तो बाद बाकी फैक्टर्स के ऊपर बार. ठीक है, अब अपने आप बताओ ऑन योर जनरल नॉलेज, कोई चीज का, कोई भी चीज को ज्यादा कब खरीदोगे? जब प्राइस ज्यादा होगा कि प्राइस कम होगा? जब प्राइस कम होगा तब तुमको खरीदने में मजा आता है ना. देन यू आर गोइंग टू डिमांड मोर. Now in this chapter you are going to think from the point of view of consumer. तुम लोग सब कौन हो? कंज्यूमर. ठीक है, तुम लोग कस्टमर्स हो, तो तुम लोग ज्यादा सामान कब खरीदते हो? डिस्काउंट्स मिलता है, सेल लगता है, जब प्राइस गिरता है कि जब प्राइस बढ़ता है? जब प्राइस. So lower is the price, greater is the demand. Lower is the price, greater is the. When price fall, demand rises. When price fall, demand rises. And vice versa, can I say? Vice versa means opposite. When price is going to rise, demand is going to fall. Other factors remaining constant. In spite of saying other factors remaining constant, we are going to use the term ceteris paribus. We are going to use the term ceteris paribus. The word ceteris paribus means what? Other factors remaining constant. तो बार बार other factors remaining constant ये नहीं बोलेंगे, छोटा सा टर्म यूज करेंगे. क्या? ceteris paribus. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, what does ceteris paribus means? क्या बोलोगे? other factors are remaining constant. क्लियर है? तो मेरे को बताओ, हम लोग क्या पढ़े? जब प्राइस राइज होगा, कैन आई यूज दिस साइन? राइज का साइन. ठीक है, तो डिमांड क्या होगा? राइज की फॉल. ये सब साइन समझ में आ रहा है? तो क्लियर है? प्राइस राइजेस डिमांड, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड. कैन आई यूज दिस नोटेशन? ठीक है, ceteris paribus. क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. मेरे को एक चीज देख के बताओ, प्राइस जब राइज हो रहा है, डिमांड क्या कर रहा है? आर दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? आर दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन की इनवर्स रिलेशन. सो कैन आई से देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डायरेक्ट है कि इनवर्स है? क्योंकि दोनों जन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है? प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड क्या कर रहा है? फॉल. एंड वाइस वर्सा, ceteris paribus. So there exists an inverse relationship between price and demand. When price rises, demand falls, and vice versa, ceteris paribus. समझ में आया कुछ? वापस से बोलो. There exists an, speak out, inverse relationship between price and demand. ठीक है? Which means when price rises, demand falls, and vice versa. Vice versa नहीं बोलो तो क्या बोलोगे? When price fall, demand rises. ceteris. क्लियर है? डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? नाउ आंसर मी. कितने जन को ग्राफ समझ में नहीं आता है? हाथ उठाओ. एनीबडी इज ग्राफ फोबिया? समझ में नहीं आता, हौच पौच लगता है, क्या हो रहा है पता नहीं. रेज योर हैंड्स. जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड उन लोगों को तो छोड़ ही दो, उन लोग तो किए ही नहीं होंगे ग्राफ.
दोज हैव डन इकोनॉमिक्स, डोंट फील शाई, बताओ। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तुमको भी नहीं समझ में आता है, और सबको आता है समझ में, तुमको भी नहीं आता। अभी धीरे धीरे हाथ उठेगा, ठीक है। वॉट एवर द केस इज, यू आर गोइंग टू फॉलो एवरीथिंग इन दिस क्लास। एकदम बच्चा है, कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आता है, कौन होता है, उतना तो समझ में आता है ना, बस वही सीखना और कुछ नहीं सीखना है। लुक एट द बोर्ड, बताओ व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हिच वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन कि दिस वन। हॉरिजॉन्टल समझ में आता है, तो हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। बस इतना समझ लो। एंड दिस इज ओ, आई हैव रिटन जीरो ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या रहता है, जीरो, ठीक है। सुनो, इन दिस चैप्टर ऑफ डिमांड, एवरी टाइम वी आर गोइंग टू मेजर ऑल द फैक्टर्स ऑन द वाई एक्सिस, ऑल द फैक्टर्स ऑन द एंड डिमांड ऑन द एक्स एक्सिस। और डिमांड को कहां मेजर करेंगे, समझ में आया क्या बोले, हर समय फैक्टर्स को कहां पे मेजर करेंगे, फैक्टर्स यानी समझ में आ गया, ऑल दीज थिंग्स। ये लोग को कहां मेजर करना है, वाई एक्सिस, और डिमांड को कहां मेजर करना है, एक्स एक्सिस। तो मेरे को बताओ मियां क्या लिखे, डिमांड, डीडी लिख दे रहे, डीडी का मतलब डिमांड, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। यहाँ पे क्या लिखे बताओ, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। यहां तक समझ में आ गया। अब मेरे को ये बताओ, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल व्हेन प्राइस इज ₹10 पर kg, व्हेन प्राइस इज रुपीज, यू आर डिमांडिंग 2 kg, तुम कितना यूनिट्स खरीद रहे हो, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 2 kg। जब प्राइस 10 रुपए है ना, तुम कितना यूनिट्स खरीद रहे हो, 2 यूनिट्स। प्राइस गिर गया, 5 रुपए हो गया, प्राइस कितना हो गया, इतना तो समझ में आता है, गिरेगा तो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है। व्हेन प्राइस फॉल्स, अपने आप बताओ, डिमांड शुड राइज कि डिमांड शुड फॉल, डिमांड शुड राइज कि डिमांड शुड फॉल। तो डिमांड राइज इस तरफ कि इस तरफ, इस तरफ ना। तो लेट अस सपोज कि 4 यूनिट्स हो गया, डिमांड कितना यूनिट्स हो गया है, तो प्राइस 10 था तो डिमांड 2, प्राइस 5 है तो डिमांड क्या हो गया, 4। समझ में आ रहा है। These 2 points if you join, you are going to get a curve, downward sloping, you are going to get a curve that is known as downward sloping। downward sloping क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, downward sloping। So what is the shape of demand curve, downward sloping। what is the shape of demand curve, downward sloping। and learn it whenever the relationship is inverse, opposite, जब भी 2 वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, the shape will be downward, the shape always will be downward। और जब भी रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट था कि इनवर्स था, तो शेप क्या हो गया, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का उल्टा क्या होता है, अपवर्ड। अपवर्ड कब होगा, जब द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट, जब बोथ द थिंग्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी वो भी राइज हो रहा है, दूसरा भी राइज हो रहा है, तब क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो डायग्राम एग्जाम में बना बना के नहीं देखने, बस समझ लो, इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, डायरेक्ट रिलेशन है तो अपवर्ड स्लोपिंग। और कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इज इट क्लियर, इज दिस ग्राफ क्लियर विथ यू, ठीक है यहाँ तक। सो व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व, क्लियर है यहाँ तक। Now listen, only the relationship between this price and demand is also called by a special name known as law of demand। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, law of demand। Answer me, listen to me carefully। The relationship between demand and all the factors is termed as dash। क्या बोलोगे, demand function। But when I am asking you the relationship between demand and price, it is termed as, समझ में आया क्या पूछे, जब खाली तुमको डिमांड और प्राइस का रिलेशन बोल रहे तब क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। और जब डिमांड एंड ऑल द फैक्टर्स बोल रहे तब क्या बोलोगे, डिमांड फंक्शन। सो देयर इज अ डिफरेंस, व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर कमिंग दैट इज नोन एज डिमांड फंक्शन, व्हेन ओनली डिमांड एंड प्राइस इट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, कैन आई से more precisely, inverse relationship between price and demand। Can I say law of demand states when price rises, demand falls, and vice versa, ceteris paribus। law of demand में खाली कौन change होगा, which factor, other factors is going to remain constant। law of demand indicates that the shape of the demand curve is dash, what is the shape, downward। क्यों downward sloping है, because the relationship is inverse। समझ में आ गया यहाँ तक। so this completes your first factor।